Today's topic of discussion is causes of poverty. If we consider historical causes, that is most prominent cause and it created a deep poverty in our country. ठीक है? When we look after our before your independence, when we look colonial period, we will find the exploitation of Indian citizen. ठीक है? By British policy. It became a major cause of your, you can say, poverty. ठीक है? Second cause was sudden rise of population. Clear? So these were main causes of poverty. Understood? When we consider all these things, we can say that widespread poverty in India is due to many reasons. That is, first one is historical reason. ठीक है? widespread poverty. ठीक है? In India. ठीक है? It is due to historical reason. ठीक है? What is historical reason? It has a historical reason. ठीक है? That I have already discussed. ठीक है? तो इसमें क्या है? The policies of the colonial government. ठीक है? Exploiting policy. Policy of colonial government, right? This was major cause. Understood? And we have got many other things. Here what happened? Traditional means traders, handicrafts, clear? And many other workers, they were discouraged. ठीक है? What happened? Farmers, traders, workers, ठीक है? They were discouraged. इनको discourage किया गया. ठीक है? So that they could not grow proper, crops. They cannot work properly. Traders could not supply at profitable rate. Isn't it? That's why it became a problem. ठीक है? Secondly, you have got the low rate of growth persisted until 1980s. This resulted in less job opportunities. ठीक है? इससे क्या हुआ? There was less job opportunity. ठीक है? Job opportunity was reduced. ठीक है? And after independence, Mahatma Gandhi's non-cooperation movement, ठीक है? It also made people unemployed. Understood? They left job, they boycott cloth, ठीक है? They quit their jobs from government services, means British offices, ठीक है? जब सब लोग नौकरी छोड़ दिए तो क्या होगा? Automatically there will be poverty, है कि नहीं? तो ये सब भी रीजन था. And along with this, the growth rate of population, ठीक है? High growth rate of population. Clear? High growth rate of population was one of the eminent cause of poverty. ठीक है? फिर the failure of fronts, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है? इट वाज फेल्ड, है कि नहीं? अंडरस्टैंड? मीन्स यू कैन से पॉपुलेशन कंट्रोल वाज फेल्ड. ठीक है? पॉपुलेशन को नहीं कंट्रोल कर पाए. दैट्स व्हाई वी कुड नॉट get profit. Understood? And with the spread of irrigation and green revolution, many job opportunities were created in India. But the industries both in public and private sector did provide some jobs. कुछ jobs तो मिले लोगों को, ठीक है? लेकिन it was in comparison to this, it was less.
Understood? It was less in comparison to this thing. Understood? इसको अपने पास ही रखो, इसको जब पूरा इसे ऐप से देख करके लिखना है, ठीक है, जो ऐप बना हुआ है उसमें से. So in this manner you can say that another feature of high poverty rates has been huge income inequality. ठीक है, एक क्या था, huge income inequality. ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी, किसी को ज़्यादा सैलरी, किसी उसी काम के लिए किसी को ज़्यादा पैसा, किसी को कम पैसा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी. ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज. ठीक है, फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. राइट, अगला क्या है, देयर वाज अनइक्वल distribution of land. Some are large area holder, some are less area holder, some are landless. ठीक है, why this land distribution was not regular. ठीक है, and along with this, despite many policies, ठीक है, there was no issue. ठीक है, major policy initiative like reform, ठीक है, it aimed at redistribution, but it could not implement properly. ठीक है, there was no effective policy. ठीक है, there was policies could not be implemented. ठीक है, implemented effectively. ठीक है, effectively. Whatever policies were made, they remained less effective. कोई असर नहीं पड़ा उसका. They became victim of corruption. वो सब भ्रष्टाचार के शिकार हो गए. ठीक है, that's why it happened. You know, poverty remained for long period. ठीक है, so in this way, most of the states you have got, they have different geographical area. अब राजस्थान है, there is no resource, very less resource. Again, what will happen there? There will be more poverty, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है. क्या खाएंगे, क्या उगाएंगे, क्या करेंगे, है कि नहीं. So many other socio-cultural and economic factors also are responsible for poverty. ठीक है, जैसे सोशल मोबिलाइजेशन. ठीक है, एंड हमारे क्या है कि बहुत सारे हमारे रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी. ठीक है, ये सारे जो है दे आर द फैक्टर्स. ठीक है, रिलीजियस मैटर्स दे ऑल्सो ब्रॉट पॉवर्टी एंड द वल्नरेबिलिटी, दैट इज मीन्स नेचुरल disasters, they were also causes of poverty. है कि नहीं, नेचुरल डिजास्टर्स भी पॉवर्टी के कॉजेज हैं. क्लियर, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉजेज. ठीक है, एंड हियर यू कैन से इफ दीज कॉजेज आर देयर. ठीक है, एंड इसमें एक चीज और है, हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस. एक और चीज था, हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस. हमारे बहुत सारे छोटे फार्मर्स हु हैड वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग, दे फेल इन डेप्ट ट्रैप. वो लोग कर्ज के जाल में फंस गए. एंड मनी लेंडर्स, ठीक है, दे कॉन्फिस्केटेड देयर लैंड, उनकी ज़मीनें जब्त कर ली. ठीक है, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, दिस लैंड दे बिकेम लैंडलेस. दैट्स व्हाई दे बिकेम पुअर. है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है क्रॉप के लिए जो है लिया लोन और क्रॉप फेल हो गया. अगले साल फिर लोन लिया, फिर फेल हो गया. ऐसे होता चला जा रहा है और कर्जा बढ़ता चला गया. लास्ट में क्या हुआ, मनी लेंडर ही विल कॉन्फिस्केट हिज लैंड. कहेगा भाई इतना कर्जा हो गया, पहले आप दीजिए. नहीं है तो वो जो है अपना मनी एंड मसल पावर यूज़ करके भगा देगा सबको, मार पिटाई करके उसका ज़मीन लिखवा लेगा अपने नाम से.
करेगा नहीं? सो फॉर दिस अनदर टॉपिक कम्स, दैट टॉपिक इज एंटी पॉवर्टी मेजर्स। हम कौन कौन से मेजर्स यूज करें, ठीक है? विच एंटी पॉवर्टी मेजर्स शुड बी यूज, अंडरस्टूड? हम कौन से एंटी पॉवर्टी मेजर्स यूज करें, अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ठीक है? पॉवर्टी से निपटने के लिए हम कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल करें, है कि नहीं? व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन? गरीबी कैसे कम होगी, isn't it? For this you must have some program. So to remove poverty we should have to start some developmental strategy, ठीक है? There should be implementation of developmental strategy, ठीक है? हमें विकास का एक योजना तैयार करना पड़ेगा और उसको लागू भी करना पड़ेगा, खाली कागज में नहीं कि हमने कागज में तो तैयार कर लिया ऐसे ऐसे विकास होगा, उसको लागू कौन करेगा? जब लागू होगा तभी। अब इस पर जब एक झापड़ मारेंगे तब ये लिखना शुरू करेगा, है कि नहीं? इसी की तरह हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? बैठे हाथ से हाथ धरे, मैं इतना मेहनत से चौक से लिख रहा हूँ, कम से कम उसको नोट कर लेना चाहिए। लेकिन हमारी कंट्री की सबसे बड़ी समस्या यही है, ठीक है? यहाँ लोग जगते हुए सोते रहते हैं, आँख खोल के सोते रहते हैं, ठीक है? अगर आपने पहले से बनाया वो बात दूसरी है, लेकिन बैठा हुआ आराम से, इसको बिल्कुल इसके कान पे जू तक नहीं देख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि मेरे पीछे अश्विनी बैठा है, क्लास का टॉपर बच्चा है, वो फिर भी लिख रहा है ना? उसको पता है, उसको आता है, उसके बाद भी वो नोट कर रहा है। लेकिन ये हमारे साथ है कि जो है नहीं चाहते बदलना, ठीक है? सो द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंस। एक क्या है? 2 प्लैन है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो पहला क्या है? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? फर्स्ट प्लान, ठीक है? अंडरस्टूड? हाउ टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके लिए हमें प्रोग्राम तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, राइट? एंड दूसरा क्या है? देयर शुड बी टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। सेकंड क्या होना चाहिए? टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, ठीक है? हमें टारगेट बना करके अपना जो है प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा कि अम्बेडकर नगर में, मिर्जापुर में, ठीक है, 10 घर है जो शेड्यूल कास्ट है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो व्हाट टारगेट शुड बी मेड सो दैट दिस 10 शेड्यूल कास्ट पीपल गेट्स बेनिफिटेड, है कि नहीं? तो इसके लिए इसको कहते हैं एंटी पॉवर्टी टारगेटेड प्रोग्राम, ठीक है? तो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू 80s, ठीक है, देयर वाज लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, है ना? यू विल स्टडी इन क्लास 10, बट फॉर सेक ऑफ इंट्रोडक्शन आई वांट टू टेल व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है? पर कैपिटा इनकम मतलब पर हेड इनकम। एक आपको हम एक आइडिया देते हैं, जैसे आपकी फैमिली में देयर आर 8 मेंबर्स, ठीक है? देयर आर 8 मेंबर्स इन योर फैमिली एंड ओनली 1 मेंबर, ठीक है, ही इज अर्निंग, ही इज प्राइमरी टीचर, ही गेट्स 40,000 पर मंथ, ठीक है, बिकॉज ही इज प्राइमरी टीचर, राइट? एंड रिमेनिंग 7 पीपल्स दे आर अनएम्प्लॉयड, they are dependent on him, right? So what will be per capita income? तो यही 40,000 को अगर हम 8 मेंबर से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो एक आदमी का की कमाई कितनी बनी? 5,000 रुपये एक आदमी के हिस्से में आया,
है कि नहीं है? अब 5,000 रुपये में तो 3,000 तो आपका खाने पे ही खर्च हो जाता है कि नहीं? अगर पूरे महीने का प्रॉपरली हम डाइट कैलकुलेट करें तो एटलीस्ट 3,000 एक बच्चे पे खर्चा आता है। बड़ों पे तो 3,500-4,000 तक आता है महंगाई की वजह से। क्लियर? प्लस 9th की फीस कितनी है? 2,000 फीस हो गई हर महीने। ठीक, अब तो आपका जो है खाने और फीस देने में ही सारा पैसा चला गया जो आपकी इनकम थी। हर आदमी की इनकम कितनी हुई? 5,000 हुई। तो अगर सारे बच्चे अगर 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं तो पता लगा खाने और फीस में ही सारा पैसा चला गया हर एक के ऊपर जितना आया। आप बाकी कपड़ा लत्ता कहाँ से खरीदेंगे, इलाज कहाँ से करवाएंगे, मार्केट में शॉपिंग कैसे करेंगे, दुकान पर बैठ के समोसा कैसे खाएंगे, है कि नहीं? ये सब कैसे होगा? और हमारे भी तो एक्सपेंसेस हैं। तो ये पुअर हो गया ये फैमिली, भले ही वो 40,000 कमाता है, ठीक है, लेकिन 8 मेंबर्स की वजह से दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। अंडरस्टैंड? यही आपका जो 5,000 दिस इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है, मतलब एक आदमी की इनकम कितनी है। इसी तरह हम इंटायर कंट्री की इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपने तीनों एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ से जो टोटल इनकम आता है इसका सम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। हमारी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है इसे डिवाइड कर दो, तब हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाता है, राइट। तो हमने क्या देखा कि हमारी कंट्री में जो पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ है बहुत कम हुआ, थोड़ा सा हुआ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं हुआ कि इससे हमारी पॉवर्टी कम हो जाए। पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए ना, यानी इस घर में अगर 4 लोग जो है, अगर 3 लोग अगर सरकारी टीचर हो जाते, ठीक है, तब इस घर की इनकम क्या हो जाती? 40,000 मिलके 1,20,000, है कि नहीं? अब इनकी इनकम 1,20,000 होगी फैमिली की। अब पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा, है ना? 15,000 रुपये पर कैपिटा इनकम आया, ठीक। अब ये बड़े आराम से अपने बच्चों को लखनऊ में पढ़ा सकते हैं, कोटा में कोचिंग करा सकते हैं, है कि नहीं? बढ़िया जगह पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कोचिंग लगवा सकते हैं, ठीक है। अपने बच्चों के लिए जो है रिक्शा वगैरह कर सकते हैं स्कूल, या पल्सर खरीद के दे सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकता है कि नहीं? तो बहुत सारी सुविधा उसको मिल गई। तो ये हमारे पर कैपिटा इनकम बढ़ने से होगा, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी फैमिली में, अंडरस्टैंड? तब हमारा पॉवर्टी अब क्या होगी, अपने आप जो है रिड्यूस हो जाएगी। जब इनकम बढ़ा तो पॉवर्टी रिड्यूस, और इनकम नहीं बढ़ा तो पॉवर्टी बढ़ी, है कि नहीं? तो यही सारे रीजंस होते हैं। समझ में आ रहा सबको? हाँ। तो ऑफिशियल पॉवर्टी जो रिडक्शन है, ठीक है, जो हमारा ऑफिशियल पॉवर्टी रिडक्शन है, ठीक है, इसका एस्टिमेट आया 45% इन द अर्ली 1950, ठीक है। 1950 में 45% हमारा जो है पॉवर्टी रिड्यूस हुआ। इससे पहले और पॉवर्टी थी। इंडिया के आज़ाद होने से पहले हमारे यहाँ लोग खाए बिना मर जाते थे, ठंडी में मर जाते थे, बारिश में मर जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनका पेट नहीं भरता था, बिकॉज देयर वाज नो ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, ठीक है। हमारे पीस ऑफ लैंड पे उतना जो है प्रोडक्शन नहीं था, और बहुत सारा पोर्शन हमारा फॉरेस्ट कवर था, जंगल था। देयर वाज नो कल्टिवेटेड लैंड। ये तो बाद में फॉरेस्ट क्लियर करके लैंड बने, ठीक है, तब जा करके हमारा पेट भरने लगा। अंडरस्टूड? तो इन दिस वे सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम एवरेज ऑफ 3.5% टू 6% ड्यूरिंग 1980s, ठीक है। 1970 में क्या था, इन 1970 growth rate of India was 3.5%, ठीक है, and it jumped to
6% इन 1980। 10 सालों में हमारा ग्रोथ रेट जो है पॉवर्टी के मतलब जो है क्या कहते हैं, हमारा जो ग्रोथ रेट हम लोग का विकास है, ठीक है, 1970 में 3.5% था। अब वही 1980 में कितना हो गया, 6%। इसका मतलब हमने मेहनत करना शुरू कर दिया है कि नहीं, तभी हम लोग का ग्रोथ रेट बढ़ा। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ें हमारे डाटा से पता चलता है, ठीक है। सो द हायर ग्रोथ रेट हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। भाई जब 3.5% था तब पॉवर्टी ज़्यादा थी, ठीक है। When it became 6% then poverty was reduced, है कि नहीं। अब पॉवर्टी हमारी कम हुई। तो ग्रोथ रेट से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारी पॉवर्टी बढ़ रही है घट रही है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारा, इट वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स रिसोर्सेज नीडेड। जितना तेज इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम होंगे, है ना। एंड इन दिस वे पीपल विल इन्वेस्ट, ठीक है, इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या जरूरत है इसके लिए, हाउ वी विल ग्रो, हमारा ग्रोथ कब बढ़ेगा, ठीक है। ग्रोथ रेट will increase if there is more investment in human development, ठीक है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसका ग्रोथ रेट बढ़ेगा। मतलब बच्चों को अगर हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, है कि नहीं, मतलब एक पब्लिक में ज़्यादा फीस लग रही है क्योंकि टीचर यहाँ ज़्यादा मेहनत करते हैं, है कि नहीं, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है इसीलिए फीस ज़्यादा लग रही है, तो आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। वही आप चले जाइए प्राइमरी स्कूलों का हाल देख लीजिए जाके, कितने बच्चे आते पढ़ने, कोई नहीं जाता होगा, है कि नहीं। टीचर भी जो है अपना आराम से 60,000 रुपया महीना ले लेते हैं महीने के लास्ट में बिना पढ़ाए, है कि नहीं। तो इससे कंट्री का लॉस भी हो रहा है ना। और जो है यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है इसलिए आप मेहनत से पढ़ रहे हो, है कि नहीं, आपको नॉलेज हो रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो हम लोग को अच्छी जॉब मिलेगी। भाई जब इंटरव्यू में जाओगे तो पता लगेगा कि भाई अच्छे स्कूल में पढ़ा है जहाँ फीस बहुत ज़्यादा लगती थी, इसका मतलब वहाँ एजुकेशन अच्छा था, तो प्रेफरेंस आपको मिलेगा जॉब के लिए। वहाँ जो है भाई ये क्या कहते हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे को नहीं मिलेगा क्योंकि उनको पता है इसमें कितना सीखा होगा वहाँ, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपकी इनकम अच्छी होगी, सैलरी ज़्यादा मिलेगी, सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो पॉवर्टी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, है कि नहीं, हर चीज़ से हर चीज़ मिल सकती है। तो इस तरीके से दिस ऑल्सो इनकरेजेस पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड, ठीक है, गर्ल चाइल्ड को भी जो है हमें स्कूल में भेजना चाहिए। अक्सर क्या होता है, लोग बॉयज़ को ज़्यादा भेजते थे पहले, है ना। तो इससे क्या है कि जब गर्ल चाइल्ड भी एजुकेटेड होंगी तब हमारा ग्रोथ रेट और बढ़ेगा, है कि नहीं। इससे क्या होगा, फैमिली की इनकम बढ़ेगी, राइट। और इस तरीके से जो है स्कूल्स इसलिए बेटर, हम लोग इकोनॉमिक रिटर्न्स हमको मिलेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। ये सब हमारे डायरेक्ट एडवांटेज है, ठीक है। इसी तरीके से वी हैव गॉट एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ हो, इजंट इट। हाउ वी विल गेट हाई ग्रोथ, व्हेन वी यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड, है कि नहीं। जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करेंगे तब हमारा इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो हमारे पास सरप्लस फूड ग्रेन होगा, ज़्यादा पैदावार होगी, ठीक है। फिर वो जो सरप्लस फूड ग्रेन है उसको हम मार्केट में सेल करके पैसा पाएंगे, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, फैमिली के सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, राइट। तो हमारी अब गरीबी कम हुई कि नहीं, राइट। ये सब रीजंस है। सो इन दिस मैनर वी हैव गॉट डायरेक्ट बियरिंग ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। पीपल लिव इन अ विलेजेस एंड डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जो लोग गांव में रहते हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दे नीड इन्वेस्टमेंट,
उनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उनके लिए भी प्राइमरी स्कूल गांव में होना चाहिए, है कि नहीं, उनको भी कोई एजुकेट करने वाला होना चाहिए, राइट, तभी हमारा जो है हो सकता है। सो इन दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, रूरल एरिया के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, ठीक है, जो हमारे क्या कहते हैं मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे रहते हैं, उनके लिए टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा, उनको टारगेट बना के प्रोग्राम लॉन्च करने पड़ेंगे कि खास तौर से उनका भी विकास हो। बाकी लोग तो जो सिटी में रह रहे हैं वो तो अपने बच्चों को एजुकेट कर ही ले रहे हैं, ठीक है, जो हमारे रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट कैसा हो, उसको टारगेट बना करके हमें एक प्रोग्राम बनाना होता है, दैट बिकम्स टारगेटेड प्रोग्राम, ठीक है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2005 सितंबर में, ठीक है, इन्होंने एक टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम तैयार किया, इसका नाम क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा 2005। दिए थे क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन दिए थे, कुछ ही बच्चों का सही हुआ, ज़्यादातर एनएसएसओ लिख दिए थे, है कि नहीं, इसी क्लास में था, किस में था पता नहीं, इसमें था कि 10th में था, याद नहीं आ रहा। तो ये जो नरेगा प्रोग्राम है, ठीक है, इस एक्ट ने क्या किया, 100 डेज का जॉब इसे प्रोवाइड करना था। इट हैज़ टू प्रोवाइड अ जॉब ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरिया, उनको 100 दिन की नौकरी कंफर्म, 365 डेज में 100 डेज की नौकरी की गारंटी, ठीक है, ये हमारा टारगेटेड प्रोग्राम हुआ, क्योंकि सीजनल वर्कर्स गांव में होते हैं, है कि नहीं, लेबरर्स होते हैं, तो इनको जो है खाली सीजन में काम मिलता है, बहुत लोगों को भी नहीं मिलता, राइट। तो गवर्नमेंट ने नरेगा प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें कम से कम 100 दिन की गारंटी थी, ठीक है, देयर वाज गारंटी ऑफ 100 डेज वर्क, ठीक है।